آج بڑا خوبصورت دن ہے، اور کیوں خوبصورت ہے؟ کیونکہ یسوع مسیح دنیا میں آئے۔ آمین۔ تو آج جو ہمارا حوالہ ہے بائبل مقدس میں، لوکا کی انجیل اس کا 2 باب اور اس کی 2 باب کی 11ویں آیت۔ لوکا رسول کی انجیل اس کا 2 باب اور اس کی 11ویں آیت یوں مرقوم ہے کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند، یعنی سارے بولیے، یعنی مسیح خداوند۔ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند۔ تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی کون؟ مسیح خداوند۔ کہاں پر؟ سارے بولیے کہاں پر؟ سارے بولیے کہاں پر؟ آج تمہارے لیے داؤد کے شہر میں ایک منجی پیدا ہوا ہے۔ داؤد کا شہر ہی کیوں؟ Why this was the place؟ یہ جگہ کیوں؟ اگر ہم داؤد کے شہر کی سٹڈی کریں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر، یا یہ وہ جگہ ہے جہاں پر قتل و غارت ہے۔ اگر آپ یروشلم کی بات کریں، بیت لحم کی بات کریں، تاریخ اٹھا لیں، سب سے زیادہ جنگ یہاں پر ہوئی ہے، بلکہ جنگ ہوئی نہیں ہے، بلکہ ابھی بھی جنگ ہو رہی ہے اور جنگ ہوتی رہے گی۔ یہاں پر جو لوگ پیدا ہوتے ہیں ہمیشہ خوف کے اندر ہوتے ہیں، ہمیشہ ڈر کے اندر ہوتے ہیں۔ فرشتہ آ کر ان کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے، اس شہر کو کیوں ہائی لائٹ کیا گیا ہے؟ یہاں پر قتل و غارت اس جگہ پر بہت زیادہ تھی، یہاں پر سکون نہیں ہوا۔ ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں، یہ شہر ہمیشہ جنگ و جدل کا شکار رہا ہے۔ ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں، دنیا کے اندر لوگ اس شہر پر قبضہ کرنے کے لیے قومیں چڑھائی کرتی تھی، یہاں پر ہمیشہ جنگ رہی ہے۔ لیکن فرشتہ آ کر گڈریوں کو، فرشتہ آ کر ان لوگوں کو جو رد کیے ہوئے تھے، جن کو دنیا میں سے، شہر میں سے نکال دیا گیا تھا، فرشتہ آ کر ان کو یہ خبر دیتا ہے کہ آج تمہارے لیے جس جگہ پر خوف ہے، جس جگہ پر جنگ ہے، جس جگہ پر موت ہے، جس جگہ پر تاریکی ہے، جس جگہ پر جنگیں ہو رہی ہیں، آج دنیا کی تاریخ بدلنے والی ہے۔ اس جگہ پر نجات دہندہ جو صلح کا پیروکار ہے، جو سلامتی کا شہزادہ ہے، جو دنیا کے اندر سلامتی لاتا ہے، وہ جو دنیا کی تاریخ کے اندر اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے، آج اس شہر کے اندر جہاں پر قتل و غارت ہے، خون ہے، وہاں پر صلح کا پیغام لے کر آیا ہے۔ داؤد کا شہر، داؤد کا شہر، فرشتے نے آ کر اس کو یوں بتایا کہ آج اس جگہ پر جہاں پر خوف تھا، جہاں پر ہمیشہ جنگ رہی ہے، آج رات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں 2025 کا کرسمس، شاید آپ کی زندگی کے اندر جنگ جاری ہے، شاید آپ
आप कर्जे की लानत के अंदर है, शायद आपको बदरूहें तंग कर रही हैं, शायद आप घिरे हुए हैं, आज रात निशात कानूनी में दाऊद के शहर में जो मनज्जी पैदा हुआ है वो यहां पर उतरा हुआ है। आज दाऊद के शहर में किंग डेविड was born in this city। दाऊद का शहर बेथलेहम। अगर हम पहला सैमुएल पढ़े, मैं हवाले नहीं पढ़ूंगा, मैं जस्ट कोट करूंगा। अगर हम पहला सैमुएल पढ़े तो जब गौर से सुनिए, जब साउल को बदरूहों ने तंग करना शुरू कर दिया और दाऊद के बारे में साउल का एक खादम कहता है कि भाई दाऊद के शहर में यानी बेथलेहम में एक नौजवान लड़का रहता है जिसको जो यस्सी का बेटा है, वो उसको बुलाया जाए, वो आकर साज बजाएगा और तुम्हारी बदरूहें दूर हो जाएंगी। अब बेथलेहम जो था ये छोटा सा कबील, ये छोटा सा कस्बा था और यहां इसको दुनिया के अंदर इसको फतह करने के लिए फौजें चढ़ाई करती रहती थी। और दाऊद के बारे में यही लिखा हुआ है कि दाऊद बेथलेहम में पैदा हुआ। याद रखिए, खुदा कितना सादक है, कितना सच्चा है, कितना बढ़िया खुदा है। दाऊद के शहर में क्यों? क्योंकि वादा किया गया था जहां पर दाऊद पैदा होगा वहां पर खुदावंद पैदा होगा। ये बेथलेहम के अंदर दाऊद ने परस्तिश करना सीखी थी। बेथलेहम के अंदर दाऊद ने भेड़ बकरियां चराना शुरू की थी। बेथलेहम के बारे में अगर पढ़े तो दाऊद से पहले यह मशहूर जगह नहीं थी। याद रखिए, खुदावंद जहां पर आता है उन जगहों को मशहूर कर देता है। खुदावंद जहां पर आता है उन जगहों को मशहूर कर देता है। और दाऊद के बारे में यह लिखा हुआ है कि दाऊद बेथलेहम के अंदर रहता है। और याद रखिए, खुदा कितना सच्चा और आदल है। 1000 साल से ज्यादा दाऊद, सुनिए इधर देखिए, 1000 साल से ज्यादा का अरसा है दाऊद पैदा हो रहा है। और नबूवत ये की गई है कि जहां पर दाऊद पैदा हुआ है वहां पर दुनिया का निजात दहिंदा भी पैदा होगा। अब इस टाइम फ्रेम के अंदर बहुत से बादशाह आए हैं, बहुत से बादशाहों ने इस जगह को बर्बाद करने की कोशिश की है। दाऊद के बाद एक और बादशाह आया जिसका नाम नबूकदनेस्सर था। उसने कोशिश की कि इस शहर को वीरान कर दूं, यहां से निशान में मिटा दूं, यहां इस यरूशलेम के इर्द गिर्द जितने भी कस्बे हैं इनको मैं खत्म कर दूं, इनको मैं खंडर कर दूं। अब वादा किया गया है कि दाऊद के शहर में वो पैदा होगा। और बहुत से बादशाहों ने इस जगह को तबाह करने की कोशिश की लेकिन फिर भी तबाह ना कर सके। खुदा जमानों का खुदा है, खुदा हालातों का खुदा है, खुदा जमानों को कंट्रोल करता है। सुनिए सुनिए, बहुत से लोगों ने कोशिश की कि इस जगह को तबाह कर दे। बहुत से लोगों ने शाबाश, बैठना नहीं पीछे, मैं जब कहूंगा सुनिए, बहुत से लोगों ने कोशिश की कि इस शहर को बर्बाद किया जाए लेकिन वो कैसे बर्बाद कर सकते हैं? वादा किया गया है कि दाऊद के शहर में निजात दहिंदा पैदा होगा। जो चीजें खुदा ने बना दी हैं दुनिया के बादशाह भी उसको बर्बाद नहीं कर सकते, दुनिया के हुक्मरान भी उसको खत्म नहीं कर सकते। अपने ईमान को बढ़ाइए। कहां पर एक बादशाह हुआ जिसका नाम था नबूकदनेस्सर बादशाह। उसने कोशिश की कि दाऊद के शहर को बर्बाद कर दे। दाऊद बड़ा जबरदस्त
बादशाह था। इस शहर की मैं हिस्टोरिकल पॉइंट आपको बता रहा। फरिश्ते ने आकर कहा, जिस शहर को लोगों ने बर्बाद करना चाहा, खुदा ने उस शहर को आबाद रखा। जिनको खुदा आबाद कर देता है, लोग उन्हें बर्बाद नहीं कर सकते। आप लोगों से मत डरिए, आप लोगों से मत घबराइए, आप पोजीशन से मत डरिए। ये बहुत बड़ी पोजीशन में है। खुदा पोजीशन का नहीं, खुदा मसा का खुदा है, खुदा कुदरत का खुदा है। खुदा चीजों को शिफ्ट कर सकता है। जब खुदा मेरी तरफ है तो कौन मेरा मुखालिफ है? शाबाश, शाबाश, वेरी गुड। इस जगह को, ये कस्बे को, यहां पर जंग ही रही है। यरूशलेम के में जंग ही रही है और खौफ रहा है। जहां पर खौफ है वहां पर खुदा रोशनी पैदा कर रहा है। और कलाम में लिखा है, जो लोग तरीकी में बैठे हुए थे उन्होंने बड़ा जलाल देखा। मैं आपको बताऊं, लोग यीशु से मिलने से पहले लोग मौत से डरते हैं। यीशु को मिलने के बाद लोग मौत को गले लगाते हैं, क्योंकि मरना नफा है, जिंदा रहना मसीह है। इस शहर को उन्होंने बर्बाद करने की। फरिश्ता आके कहता है गडरियों को, जाओ वहां देखो। जिसको लोगों ने बर्बाद करना चाहा, खुदा ने वहां पर ही जिंदगी पैदा की है। जिसको लोगों ने क्रिसमस क्या है, लोग सुनिएगा, जिस जगह को ख़त्म करना चाहते थे, खुदा ने वहाँ पर ही अपना बेटा भेजा। हो सकता है कि लोग आपको ख़त्म करना चाहते हैं। आज रात हौसला रखिए, क्रिसमस लाइटों का नाम नहीं खाली, क्रिसमस जिंदगी का नाम है। जिस जगह को लोगों ने बर्बाद करना चाहा, खुदा ने उनको स्टैब्लिश कर दिया, खुदा ने उनको खड़ा कर दिया। दाऊद का शहर रहेगा रहती दुनिया तक, क्योंकि मलक जी यहां पर पैदा हुआ है। मिलके बोलिए आज, बोलिए आज। कई लोग क्रिसमस को नहीं मानते, कहते क्रिसमस भी कोई दिन है। और भाई तू ना मान, तू क्रिसमस ना मान, मैं तो मानूंगा, मैं फरिश्तों के साथ ये दिन मनाऊंगा। फरिश्ते कह रहे आज क्रिसमस से पहला जाओ, जाकर देखो और शहर नू जिन्हों लोगों ने बर्बाद करना चाहा, खुदा ने उस शहर खड़ा किया और उथे अपना बेटा भी भेजा। तुसी क्रिसमस नहीं मनाते, ना मनाओ, मैं फरिश्तियां नाल मिलके क्रिसमस मनाऊंगा और कहूंगा आज दाऊद के शहर में। आमीन, हालेलुया। आज दाऊद के शहर में, एक दूसरे से बोलिए आज, बोलिए आज दाऊद के शहर में। एक दूसरे से बोलिए आज दाऊद के शहर में। इस शहर को लोगों ने बर्बाद करना चाहा। नबूकदनेस्सर ने यहां तक किया। इधर देखो, इधर देखो, मेरी तरफ देखो सब लोग। नबूकदनेस्सर ने हैकल को जब आग लगाई तो सोना गलियों में पिघल रहा था। लोगों ने शहर को बर्बाद करना चाहा, इसको फतह करना चाहा, इस शहर पर हुकूमत बनाना चाहिए। लेकिन याद रखिए, उनके सारे मंसूबे खत्म हो गए। आप लोगों से कभी ना डरिए। लोग आपको क्या कर देंगे, लोग आपका कुछ नहीं कर सकते। अगर खुदा ने दाऊद के शहर को बचा दिया, खुदा आपको भी बचाने की कुदरत रखता है। अगर वो दाऊद के शहर को बर्बाद नहीं कर सके, खुदा आपको भी बर्बाद। इस क्रिसमस के मौका पर मेरा पैगाम क्या है? मेरा पैगाम ये है, अगर दुश्मन दाऊद के शहर को खत्म नहीं कर सका तो खुदा आपको भी खत्म नहीं होने देगा, खुदा आपको भी सरफराज करेगा। मेरे पीछे बोलिए, बोलिए। लिखा उसी इलाका में, ऊंची बोलिए, उसी इलाका में चरवाहे थे जो रात को मैदानों में रहकर अपने गल्ला की निगहबानी कर रहे थे।
फरिश्ता, इधर देखिए, फरिश्ता आया। फरिश्ते ने कहा जाओ जाओ, उस शहर को देखो, बैतलहम को देखो। बैतलहम छोटा सा कस्बा था, छोटा सा इलाका था। और अगर आप मीका की किताब पढ़ें, और वहां पर लिखा है, ए बैतलहम अफराता, अगर तेजू हजारों में से छोटा है, तुझसे मैं हाकम निकालूंगा जो मेरी कौम इस्राएल की गिलाबानी करेगा। आप सुनिए, छोटे होकर भी नहीं मरेंगे। अगर खुदा आपके साथ है, खुदा आपको जिंदा रखेगा। हालेलुया। कहां पर पैदा हुआ है मनोज जी? बोलिए जरा। दाऊद के शहर में। ये वो जगह है जहां पर खून रहा है। खुदा जहां पर खून है वहां पर जिंदगी का ऐलान कर रहा है। 2025 का क्रिसमस क्या है? इधर देखो, 2025 का क्रिसमस क्या है? ये है, मत डरिए। फरिश्ते ने गडरियों को कहा, मत डरो, मत डरो। अगर खुदा कस्बे की हिफाजत कर सकता है, खुदा आपकी भी हिफाजत कर सकता है। अगर खुदा उस गांव को बर्बाद नहीं होने दे, क्योंकि वहां पर कलाम बोला गया था। जहां पर कलाम बोल दिया जाता है ना, कलाम बादशाह से भी बड़ा है। बादशाह भी उस जगह को गिरा नहीं सकते। कितने लोग हैं जो गिरे हुए हैं, जो नाउमीद हैं, जो टूटे हुए हैं, जो बेकार हैं, जो बीमार फील करते हैं, जो फील करते मेरी कोई परवाह नहीं करता, मेरी कोई हिफाजत नहीं करता। आज रात मैं आपको बताऊं, अगर आप खुदा की मोहब्बत को जान जाएंगे, आपको किसी की मोहब्बत की जरूरत ना पड़ेगी। क्योंकि कलाम में लिखा है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। मिलकर बोलिए, खुदा दाऊद के शहर को बर्बाद नहीं होने देगा। अगर उसको नहीं बर्बाद होने देगा, आपको भी कभी बर्बाद नहीं होने देगा। थैंक यू। आप मिलकर बोलिए, जब खुदावंद मेरे साथ है तो कौन मेरा मुकाबला कर सकता है? क्रिसमस सुनिए, क्रिसमस क्या है? इधर देखो, क्रिसमस क्या है? आखिरी बात करूंगा, क्रिसमस क्या है? एक बच्चा था हॉस्टल के अंदर, हॉस्टल के अंदर था। क्रिसमस की छुट्टियां आई। अब मैं आपको थोड़ा सा क्रिसमस का सुने। क्रिसमस की छुट्टियां आई, उसके माँ बाप ने उसको दूसरे मुल्क में स्टडी करने के लिए भेजा था। सारे बच्चे अपने अपने घरों को लौट गए, ये बच्चा रह गया। इसके पास सुनिएगा, ये बच्चा स्कूल में रह गया। और क्रिसमस का जब मौका आया, इसके प्रोफेसर ने जाकर दरवाजे नॉक किए कि कोई है तो नहीं है हॉस्टल में। जब उसने देखा कि कोई भी नहीं हॉस्टल में, उसने फिर एक आखिरी कमरे को नॉक किया। वो चेक कर रहा था कोई हॉस्टल में तो नहीं है, क्योंकि क्रिसमस का मौका था। क्रिसमस का मतलब है अपनों के साथ होना, यही मतलब है ना? बोलिए नजर आए अपने जब उसने नॉक किया तो उसने कहा, देखा तो अंदर एक नौजवान था। उसने उसको जाकर अंदर पूछा, भाई तू यहाँ पर क्या कर रहा है? उसने कहा, मैं इस क्रिसमस के मौका पर कुछ वजूहात से अपने घर नहीं जा सका। उसने कहा, बता मैं तेरे लिए क्या इंतजाम करूं? मैं तेरे लिए अच्छा खाना लेके आऊं? मैं तेरे लिए अच्छे कपड़े लेके आऊं? उसने कहा, नहीं नहीं। उसने कहा, क्या होना चाहिए तेरे लिए? उसने कहा, प्रोफेसर साहब, मेरे लिए मुझे खाने नहीं चाहिए, मुझे कपड़े नहीं चाहिए। मैं चाहता हूं कि मैं अपने बाप से मिलूं,
मैं अपने बाप से मिलूं और मैं उसके साथ क्रिसमस मनाऊं। मुझे अपने बाप के पास जाना लाजम है। उसने कहा बता बेटा फिर तेरे लिए क्या किया जाए। उसने कहा बाप मैं प्रोफेसर साहब मेरे लिए ये किया जाए कि मेरे बाप को टिकट दी जाए ताकि मैं या वो मेरे पास आए या मैं उसके पास चला जाऊं ताकि मेरा क्रिसमस हो जाए, मैं उससे मिल लूं। मेरे अजीजों इस बात को गौर से सुनिए। उसके प्रोफेसर ने किया क्या? उसके लिए टिकट का बंदोबस्त करके उसको उसके बाप के घर में भेज दिया। यहां पर तो प्रोफेसर उस बच्चे को उसके घर में भेज रहा है, लेकिन हमारी हालत तो चेक कीजिएगा। हमारी हालत ऐसी नहीं थी कि हम आसमान पर जा सकते। खुदा ने इंतजाम किया। उसने कहा कि इंसान आसमान पर नहीं जा सकता, नहीं आ सकता, मैं इसके लिए इंतजाम करूंगा। और इंतजाम क्या किया कि दाऊद के शहर में खुदा ने अपना बेटा भेज दिया, यीशु मसीह। सुनिए सुनिए, हम आसमान पर नहीं जा सकते थे। वो जमीन पर आया और उसने आकर, इधर देखो, उन आदमियों से जिनसे वो राजी क्या हो, बोलिए जरा क्या हो, वो आसमान से आया और उसने आकर दिलशाद से सुलह की और दिलशाद को कहा जहां मैं रहता हूं अब तू वहां पर जा सकता है, क्योंकि मैंने तेरे लिए आसमान का दरवाजा खोल दिया है। मेरे आने से पहले तू ऊपर नहीं जा सकता था। सुनिए, खुदा का बेटा इंसान का बेटा बना। खुदा का बेटा ताकि इंसान का बेटा खुदा का बेटा बन सके। ये है क्रिसमस।